Good morning, my dear student. Today we are going to read your second chapter of the class 11th history, city life. In this chapter, we have read the various topics: writing system, using rights, and geography of Mesopotamia. Such type of others we have read. Today we will discuss urbanization in southern Mesopotamia, temple and king. This is no doubt very important topic. In this topic, we will see the urbanization and the temple and the relation with temple to state. सारी चीज़ों को डिटेल करेंगे इनमें. एक टॉपिक थोड़ा लंबा है, बड़ा है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है. इफ यू विल read this paragraph, then you can easily learn about that topic. From 5000 BC, settlement had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest city emerged from some of these settlements. These were of various kinds. Those that the gradually developed around temple, those that developed as a center of trade, and imperial cities. It is cities of the first two kinds that will be discussed here. आज की 5000 ईसा पूर्व 5000 BC, the southern Mesopotamian towns were developed. In these towns, we are aware of that some cities, and he evolved the new cities, town to city and city to mega city. It was developed. कैसे शहर बने? इन शहरों के लिए पहले वो जो मंदिर के चारों तरफ विकसित हुए होंगे, शहरों का विकास कैसे हुआ, हाउ कैन दे इमर्ज एज इन सिटी फॉर्म. तो कहता है कि पहले मंदिर होंगे और मंदिर के चारों तरफ ये धीरे धीरे शहर बने होंगे. शहरों का विकास इस तरीके से हुआ होगा. दूसरी विचारधारा के अकॉर्डिंग, सेकेंड hypothesis to development of the city, that first the place which was famous for the markets or trading hub and surrounded with the people settled him, and it also changed himself as a city form. दूसरा, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ होगा शहर, और दूर दराज से लोग आकर के इसके आसपास बसने शुरू हो गए होंगे. फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली शहर के रूप में बस किया होगा. कहता है तीसरा शहर बनने के जो स्वरूप हैं कैसे बने होंगे, तो कहता है तीसरा ये कुछ ऐसे केंद्र के रूप में विकसित हुए होंगे, कुछ ऐसे जगह के रूप में विकसित होंगे जहाँ पे प्रशासनिक क्षमता, राजा रहता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किए जाते होंगे, और फिर वहाँ पे लोगों ने अपने सेटलमेंट को बसा लिया होगा. इस तरह से शहर बने होंगे. इसी तरीके से शहरों का विकास लगभग सभी सभ्यताओं में हुआ है. इन्हीं तीन आधारों पे मेसोपोटामिया में जिस आधार पे हो रहा था आज के 5000 साल पहले, 5000 ईसा पूर्व, तो शहरों के विकास के तीन चरण के बारे में हमने पढ़ा. अब एक एक पर चर्चा करते हैं. जैसे अर्ली सेटलर्स, देयर ओरिजिन आर अननोन, बिगेन टू build and rebuild temples at selected spots in their village. The earliest known temple was a small shrine made of unbaked bricks. Temples were the residence of various gods of the moon god of Ur, or Inanna, the goddess of love and war. Constructed in bricks, temple become larger over time with 7 rooms around open courtyards. Some of the early
once were possible, not unlike the ordinary houses, for the temple was the house of God. But temple always had their outer wall going in and out at regular intervals, which no ordinary buildings ever had. The God was the first focus or worship to him or her people brought again card and fish. The floor of some early temple had thick layer of fish bone. The god was also the theoretical owner of the agriculture fields, the fisheries and herds of the local community. In time, the processing of produce, for example, oil, pressing, grain, grindings, spinnings, and the weaving of woolen cloth was also done in the temple. Organizer of production at a level above the household, employer of merchants and keeper of written records, distribution and allotment of grain, plough record of distribution and allotment of grain, plough animal, breed, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. But there was also another factor on the scene. Dear student, in this paragraph, we are aware of the importance of temple. First, you should know about that the use of temple. No doubt it was religious purpose, but we have seen here the temple not only fulfill their religious needs, but also temple change himself as a economic center. In the temple yards, there are various type of economic activities regulate. We have seen the various gifts which was donated by the common people for their gods. Their evidences was widely spread on the outside of the temples. हमने देखा इन चीज़ों को कि व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, फिर वहाँ पे लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया भगवान के रहने के लिए. And one thing more, it is very important that there are various gods and they established in temple. And the temple, it would be the multi stories, कई मंजिले का होता होगा, उसमें इनका विकास, राजा रहते होंगे. देवता, दो देवताओं के नाम, चंद्र देवता, मून जिनके नाम उर, और एक देवी इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, उनकी डिटेल की गई है इसमें. आइए देखते हैं कैसे इस बातों को कहता है कि बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने, जो कहाँ से आए थे इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थान पर मंदिरों को बनाया, इनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया. सबसे पहले ज्ञात देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी. ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए. धीरे धीरे इन मंदिरों का विस्तार करते चले गए, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता, स्थानीय देवी देवताओं ने भी मंदिरों में अपना स्थान लेने प्रारंभ कर दिए होंगे. लोग उन्हें भी स्थापित करना शुरू कर दिए होंगे. अब उर और इनाना के अतिरिक्त लोकल डिटीज को भी स्थान मंदिरों में दिया जाने लगा, जिससे इनका आकार बढ़ने लगा. क्योंकि मंदिरों की इस क्षेत्र की खुदाई, एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन में आंगन के चारों कई कमरे होने के एविडेंस मिले. कुछ प्रारंभिक मंदिर
जो साधारण घर की तरह या घर के प्रकार की तरह लगते थे, जिसमें कई कमरे होते थे। ये मंदिर की जगह घर ज़्यादा अच्छा लगते थे, क्योंकि कमरे युक्त कई कमरे के द्वारा बना हुआ मंदिर घर की तरह ही प्रतीत होता है। मंदिर में किसी देवता को स्थापित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मंदिर को देवता का घर ही कहा जाता है। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के साथ भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। इट मीन्स अगर हम दीवारों पे बात करें, मंदिर की जो बाउंड्री की बात करें, तो वो कुछ स्पेसिफिक थी, अंदर की तरफ मुड़ी हुई। अगर आप पिक में देखें आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 37 पे एक मंदिर का पिक दिया हुआ है। वहाँ दीवार के स्ट्रक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं मंदिर की जो दीवार थी वो कुछ खास अंतरालों के भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिर की विशेषता थी, जो साधारण घरों की दीवार ऐसी नहीं होती थी, जो ये स्पष्ट करती थी। इन दीवारों के आधार पर हम समझ सकते थे कि कई कमरों वाला ये घर नहीं बल्कि ये मंदिर है। अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द वॉल्स दे रिकग्नाइज एज ए टेम्पल। घर नहीं है, मंदिर है, ये अपने को स्पष्ट करते थे। अब देवता की पूजा का केंद्र बिंदु मंदिर था। लोग देवी देवताओं के लिए कई सारी चीज़ों को चढ़ावा चढ़ाते थे, जैसे अनाज, दही, मछली। पुराने ज़माने में कुछ मंदिरों के फर्शों पे मछलियों की हड्डियों की परतें जमा मिली। उत्खनन में जब इनकी एविडेंस मिले तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अपने देवताओं को कई प्रकार की चीज़ों को चढ़ाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मछली क्षेत्रों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। देवताओं को संपूर्ण प्रकृति का स्वामी माना जाता था, जिसमें सब आते थे, जल, आकाश, पृथ्वी और उन सभी चीज़ों का जो उनके दैनिक जीवन में यूज होता था। मछली कहाँ से मिलती थी? नदी, सागर, समुद्र या पशु। इन्हें पशुओं का स्वामी कहा गया। समय आने पर उपज की उत्पत्ति, वस्तुओं के बदले की प्रक्रिया, एक्सचेंज, बार्टरिंग सिस्टम शुरू हुआ। जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और उन्हीं कपड़ों को बुनना आदि, ये सब प्रारंभ यहीं से दिखाई देता है। यही की जाती थी, मंदिरों के एरिया में की जाती थी। मंदिर के कंपाउंड में इन चीज़ों का इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप हुई धीरे धीरे। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी और वाइन जो बरली से बनती थी, मछली आदि की वितरण, आवंटन के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था के रूप में ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारण भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। हमने देखा कि मंदिरों के अंदर तमाम सारे कार्य होने लगे। इट मीन्स पर्टिकुलर द टेम्पल एरिया, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज रेगुलेट इट वॉज रन। टेबलेट लिखना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, व्यापार वाणिज्य का विकास, मंदिरों में चढ़ाने के लिए वस्तुओं का लाना और तमाम एक्टिविटीज़ को मंदिरों से कनेक्ट कर दिया गया है। शायद इसीलिए कहता है कि इन चीज़ों के कारण ही मंदिरों को आधार बना करके शहरों का विकास हुआ होगा। अब आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि सिटी कैसे मंदिर को बेस करके डेवलप हुई होगी, क्योंकि मंदिरों में सारे कार्य हो रहे थे। इन द स्पिरिट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर वाज सब्जेक्ट टू हैजार्ड्स। द नेचुरल आउटलेट channels of the Euphrates would have too much water one year and flood the crops. Sometimes they would change courses altogether. And the archaeological record show
villages were periodically relocated in Mesopotamian history. There were man-made problems as well. Those who lived on the upstream stretches of the channel could drive too much water into their fields. That village downstream were left without water, or they could neglect to clean out the silt from their stretch of the channel, blocking the flow of water further down. So the early Mesopotamian countrysides saw repeated conflicts over land and water. हमें एक लंबी लड़ाई दिखाई देती है खेती के लिए पानी के विस्तार पे, नदियों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था पे, नदियों की मार्ग में पड़ने वाले पहले जो क्षेत्र पड़ते थे वहाँ पे सिंचाई आसानी से हो जाती थी, और बाद में जो क्षेत्र होते थे जो सिल्ट से पड़ जाती थी और पानी न पहुँचने के कारण दोनों ही क्षेत्रों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। जैसे अगर इस पैराग्राफ को ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि मेसोपोटामिया की जो ज़मीन थी, लैंड थी, वो फर्टाइल थी। फर्टाइल होने के बावजूद कई बार उनके सामने कृषि का संकट, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जो नदी थी वहाँ पे यूफ्रेटस की कई सारी सब टेरिटरीज थी, कई सारी करेंट्स अलग अलग शाखाओं में बटी थी जो दूर दराज के क्षेत्रों में पानी ले जाती थी, और साल के कुछ सालों में उसमें बाढ़ आने से समस्या आती कठिन दुरूह बना देती थी। अब प्राकृतिक धाराएं जो यूफ्रेटस की थी, वर्ष में बहुत ज़्यादा पानी उसमें बह जाता था और फसलों को डुबो देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना मार्ग बदल देती थी। जो टेरिटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज थी, उन्होंने अपना रास्ता बदल देती थी, जैसे खेत सूखे रह जाते थे, जिसकी एविडेंस है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस में उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, जो ये बात प्रूव करती हैं कि नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए। दे रिवर चेंज देयर रूट, रिवर कोर्सेज चेंज देयर रूट, बिहाफ ऑफ दैट दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्राट, सूखे की समस्याओं को झेलनी पड़ी। नेचुरल डिजास्टर की भी समस्या थी, कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी उनके सामने आ खड़ी हुई। ह्यूमन disaster also play an important role to knock them miserable condition। दयनीय स्थिति में धक्का देने के लिए उनके मानव के द्वारा क्रियाकलाप भी कारण थे। जो लोग इन धाराओं में, नदियों के इन जो स्ट्रीम्स थी जिसमें पानी थी, धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने आसपास की जलधाराओं से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा नीचे की ओर बसे हुए गाँव को पानी ही नहीं मिल पाती थी, और लोग अपने हिस्से के पानी के लिए ऊपर के क्षेत्रों के बहाव पे जो डिपेंड होते थे, पानी नहीं मिल पाती थी, इसलिए आपस में लोग खूब लड़ाइयाँ करते थे। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में और रूरल एरिया में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े होते हैं। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास, एविडेंस है हमारे पास, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें झगड़े बार बार हो रहे थे। और इन झगड़ों का कारण था कि ऊपर के लोग जब पानी लेते थे तो अपने हिस्से में जो गाद कलेक्ट सिल्ट जमा हो जाती थी उसे निकालते नहीं थे, जिससे बहाव रुक जाता था, और नीचे के क्षेत्रों में पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, और पानी की समस्या से नीचे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खेत सूख जाते थे, जिससे वो लोग एक डिजास्टर के रूप में लेते थे और मजबूर थे इस झगड़ों में शामिल होने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऊपर वालों से। ये लोग पानी के लिए, जमीन के लिए कई बार झगड़ा किया है लोगों। अब इनके बाद उन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे जिसमें लड़ाइयाँ चलती रही। व्हेन देयर वर कंटिन्यूअस वारफेयर इन रीजन, दो chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot, and could take the prisoners from the defeated groups to employ as their guards or servant।
so they could increase their influence and clout. Such we were leaders, however, would be hairy today and gone tomorrow, until a time came when the such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institution or practice. In time victorious chief began to offer precious booty to the goods and thus the beautify the community temple. They would send men out of fetch fine stone and metal for the benefit of the god and community, and organize the distribution of temple wealth in the efficient way by accounting for things that came in the went out. As the poem about Anmarkar show, this gave the king high status and authority to command the community. इस पैराग्राफ में कुछ चीजों को व्यक्त किया गया है, जहां पे कहता है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाइयां चलती थी, वारफेयर होते थे, तो चिफ्टन्स जो मुखिया होते थे, अगर वो लड़ाइयों को जीत लेते थे तो वो अपने साथियों में लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे, और हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर या तो वो अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वो चौकीदार या नौकर बना लेते थे, जिन्हें अपना सर्वेंट बना लेते थे या गार्ड्स बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या तो बढ़ा लेते थे, साथ ही साथ अपनी शक्ति में वृद्धि कर लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये लीडर, ये चिफ्टन्स, ये किंग स्थायी नेता के रूप में समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, ये राजा नहीं बनते थे, ये स्टेबल नहीं थे, आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने जब इन लीडर्स ने समुदाय के कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए अधिक ध्यान दिया, और फिर इस ध्यान देने के क्रम में नई नई संस्थाएं और परिपाटी स्थापित हुई, नए नए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए। इस समय के विजेता, इस समय के जो कॉन्करर थे, जो कॉन्करर चिफ्टन्स थे, उन्होंने कीमती गिफ्ट देवताओं को अर्पित करना शुरू किया, डिवोट करना शुरू किया, और जिससे कि समुदाय के मंदिर में सुंदरता बढ़ गई। जब राजा जीतते थे तो खुश होकर के विक्टोरियस चिफ्स began to offer precious booty to the god and thus they beautify the community's temple। अपने कम्युनिटी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करते थे, अपने द्वारा खूब सारा दान मंदिरों को देते थे, जिससे मंदिरों की भव्यता तो बढ़ी, मंदिर इकोनॉमिक सेंटर के रूप में एक नया स्थान लेने लगे। उन्होंने लोगों को, राजा ने लोगों को, या जो चिफ्टन्स थे, जो युद्ध जीतते थे, जो अस्थायी नेता थे, उन लोगों ने जब नए संस्थाओं की स्थापना कर ली तो इन लोगों ने उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए, मंदिर को ब्यूटीफाई करने के लिए, देवताओं को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इन्होंने दूर के क्षेत्रों में प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए भेजा। लेपिस लेजली, जिसका इस्तेमाल मंदिरों को सुंदर बनाने के लिए किया जाता था, भेजा। हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ अनमरकर एपिक, वेयर वी हैव सीन कि किस तरीके से अनमरकर अपने मंदिर को सुंदर बनाने के लिए पहली बार व्यापार व्यवस्था से कनेक्ट होता है, टैबलेट लिखता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की थी। इन राजाओं ने काम शुरू किया, इन लोगों को उत्कृष्ट पत्थर और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवताओं और समुदायों का लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर में धन संपदा के वितरण को और मंदिर में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रख के प्रभावी तरीके से राजा की डिग्निटी को बढ़ाते हुए
उसको रेगुलेट कर सके। इसी की कहानी को हम लोगों ने अनमरकर की स्टोरी में पढ़ा था। अब मंदिरों को हमने देखिए, हम चरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मंदिरों के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले मंदिर कैसे बने, इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप हुए। फिर हमने देखा कि मंदिरों का विकास के क्रम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो रेगुलेशन हो रहा था, जो रेगुलेट हो रही थी, वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर हमने देखा कि मंदिरों के कंपाउंड में ही जो उन मंदिरों को चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं थीं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही साथ वहाँ से प्रोडक्शन, आर्टिसंस के काम के फलस्वरूप सरप्लस प्रोडक्शन होने लगे ट्रेड के लिए, और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में, ट्रेडिंग हब के रूप में ये एरिया डेवलप हुआ। और फिर हमने उसके बाद फिर हमने एग्रीकल्चर को देखा। एग्रीकल्चर के लिए हमने वाटर फैसिलिटीज़ को, ड्रेनेज सिस्टम पे बात की, किस तरीके से होती थी, और पानी के लिए किस तरीके से आपस में लड़ाइयाँ हुई। और फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी समस्याओं को दूर करे। और यहाँ से हमें एक अनस्टेबल मोनार्कियल फॉर्म दिखाई देता है, इनिशियल फॉर्म ऑफ द मोनार्की दिखाई देती है। यहाँ कहता है कि राजा स्थायी नहीं था, लेकिन वो युद्ध में इन क्षेत्रों को जीतता था, अपने लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ता था, और लूट का सामान अपने लोगों में बांट देता था। जिन लोगों को अरेस्ट करके, कैप्चर करके लाता था, या तो उनको दास बना लेता था, या तो अपने सुरक्षा सेवक बना लेता था। और फिर अपने कम्युनिटी के मंदिर को सुंदर करने के लिए वो दूर दराज के क्षेत्रों से पहले तो वो मंदिर को खूब चढ़ावा चढ़ाता था, और फिर सुंदर करने के लिए दूर दराज से धातु, पत्थर, कीमती पत्थर लाने के लिए व्यापार का माध्यम बनाता था। और यहीं से व्यापार का डेवलपमेंट दिखाई देता है। वी कैन इमेजिन mutually reinforcing cycle of the development which leaders encouraged the settlement of village and villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together. Beside, people would be safe living in close the proximity to one another. At Uruk, one of the earliest temple town, we find the depictions of armed horses and their victims, and careful archaeological survey have shown that around 3000 BC, when the Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro, would be in later centuries, dozen of small villages were deserted. There had been major population shift significantly. Uruk also came to have the defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BC to about 400 CE, and by about 2800 BC it has expanded to 400 hectares. यहाँ पे author want to inform you about कि किस तरीके से पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना करने की बात कहता है, जिसपे चिप्टन्स ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेना इकट्ठी कर जा सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगर में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनके हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। पिक्टोग्राफिक फॉर्म्स में उनकी डिटेल्स मिलती हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक सेंटर के रूप में, एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में मंदिर को या मंदिर के आसपास के एरिया को विकसित किया होगा, जिससे पॉलिटिकल सेंटर के रूप में शहरों का विकास हुआ होगा। राजा ने अपने लोगों को अधिक संख्या में अपने पास सुरक्षित रखा होगा, जिससे वो जरूरत पड़ने पर बड़ी सेना खड़ी कर सके। और लोग इसलिए भी इकट्ठा हुए होंगे एक पास, क्योंकि उन्हें एक साथ रहने में अपनी सुरक्षा ज़्यादा महसूस हुई होगी। उरुक के टेम्पल में ऐसे चित्र मिले जहाँ पे एक दूसरे की लड़ाइयाँ, एक दूसरे के ऊपर हमले के पिक्चर
पिक्टोरियल फॉर्म में उसके एविडेंस बनाए गए। उरुक जो उन दिनों सबसे पुराना मंदिर नगर में से एक था, से हमें ऐसे तमाम सशस्त्र वीरों से हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षण से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ये क्लियर पता चलता है कि 3000 BC के आसपास उरुक सिटी का विकास 250 हेक्टेयर भूमि तक हो चुका था। इट मीन्स काफ़ी बड़े क्षेत्र पे ये फैल चुकी थी। इसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छोटे छोटे गांव चेंज हो गए शहर के रूप में। दे मर्ज इन सिटी उरुक, और पॉपुलेशन में वृद्धि हुई उनके मर्ज होने से। इसका ये विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दुगना था। इट मीन्स मेसोपोटामिया उस समय इतना बड़ा था, जो मोहनजोदड़ो जो बाद में बसा उसकी तुलना में काफ़ी विस्तृत था। और ये भी उल्लेखनीय है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी। फोर्टिफिकेशन की बात मालूम चलती है। इस उरुक सिटी की फोर्टिफाइड करने की व्यवस्था की बात चलती है। कहता है उरुक नगर 4200 BC टू 400 AD और C तक कंटिन्यूसली अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखा, अपने अस्तित्व को बनाए रखा। और इसने 2800 ईसा पूर्व के बाद आसपास ये बढ़कर 400 हेक्टेयर फैल गया था। 2800 BC के आसपास उरुक का विस्तार 400 हेक्टेयर, काफ़ी बड़ा इलाका, एक बड़े शहर जितने क्षेत्र में इसका विकास हो चुका था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इस पैराग्राफ के छोटे से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम इसके पॉलिटिकल सेंटर को एक बार फिर डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उस वीडियो में हम अर्बन लाइफ के बारे में डिटेल करते हुए पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।